कहीं आप बोलती है कि आप अनलकी इन लव है? नो, आई थिंक मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं अनलकी हूँ, बिकॉज मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी लिबरल स्टेटमेंट्स है, बट आई फील दैट मेरे जैसी लड़कियां आज की तारीख में बहुत कम है, और ये फैक्ट है. लाइक व्हेन पीपल टेल मी, लाइक आई हैड समबडी टेलिंग मी, आई हैव नेवर आस्क्ड यू टू चेंज. आई एम लाइक, डूड, आई हैव नथिंग टू चेंज. आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट पार्टी, आई डोंट हैव अ सोशल लाइफ, आई डोंट चैट विद बॉयज, I don't Snapchat them, I don't Insta them, I don't DM them, I don't slide there. I have nobody, and if I'm committed to you, and I'm 100% loyal girlfriend. I do housework. I do not restrict my person to not talk to their family or spend on their family. I am a very good host when people come home. I said I am everything today. I am a very religious person. I also practice that reason. Also, ऐसे नहीं कैसे अपना सर आप सजदे में फोड़ रहे हो, but you're also working on yourself to be a good person, be a giving person, be a nurturing woman, and I am doing that. So I have nothing that I am a mix of modern and other ways that probably today boys look for, and I think that is what I am. Because I was telling this to my friend Sid that मैंने बहुत पहले ना एक चीज सुनी थी, क्योंकि मैं भी पहले जब सबके साथ बात करती थी मैं कहती थी ऊपर वाले, मतलब एक होता ना कि मुझे भी अच्छा लड़का दे दो, मुझे भी अच्छा लड़का दे दो. एंड आई रेड समवेयर दैट अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको भी उस लायक बनना जरूरी है, और आप अपने लिए जो सोचते हो आपको वो दूसरों को भी तो ऑफर करना है ना. अगर मैं सोचती हूँ मुझे एक लॉयल हस्बैंड मिले जो मुझे बहुत प्यार करे, मेरी इज्जत करे, घर की कुछ चीजों में मेरा हाथ बटाए, सबके यहाँ मेड है लेकिन चीज करने में मेरा हाथ बटाए, मेरी सोच में और बढ़ावा करे, मुझे और अच्छा बनाए, तो मुझे भी वो बनना जरूरी है मेरे हस्बैंड के लिए. And I started working on myself. I started doing everything that I wanted to see in my future husband. And I feel that is what people should do. You cannot not be good and expect that from your partner. आज की दौर में things are limited to only looks and money. And they feel nothing. And that is shocking. I said, मुझे बहुत बार लोग बोलते थे, यार, तेरा बॉयफ्रेंड होगा, यू आर सो प्रिटी, अच्छा सुंदर बॉयफ्रेंड ढूंढना, whoever you get married to. ऐसे भैया मेरे को मेरे घर में लैक्मे फैशन वीक नहीं करवाना है या पेरिस फैशन वीक नहीं करवाना है. अ बॉय शुड बी कंपैटिबल, someone who takes care of me, loves me and takes care of my mother and loves me, and I would equally do that for him. But unfortunately, I think I have not met my partner yet, and I feel that Allah will bless me with someone who I have always dreamt of and prayed for. जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, दिल से बोलिए, क्या अभी भी आप वो मेल्विन लुइस के जो सिलसिले में अभी भी आप खफा है? No, I am glad the garbage is out of my life and it is where it had to be. That is in the dustbin with other 4-5 dustbins garbage together. Because मैंने एक चीज हमेशा सुनी और पढ़ी है, good men are made for good women and good women are made for good men, and it is written everywhere. And it is impossible that if I'm good, God has written someone bad for me. I have intentionally or even unintentionally never hurt people. I try that I do not. I have not cheated people. I have not done things like that. So I was like, yeah, dude, I'm too good and I need someone like me. And I've always believed कि जो करता है उसको वही मिलता है. So it's very simple. I am, alhamdulillah, so happy that I am out of it and how. And after getting to know what Mahan character he was, I was like, God saved me. जो लोग कभी-कभी कहते हैं भैया प्रूफ दे दो, क्या प्रूफ है, ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से किसको बिलीव करूं? भैया मेरे को आपकी बिलीव की जरूरत ही नहीं है. जस्टिस आप मुझे नहीं दोगे, जस्टिस मुझे ऊपर वाला देगा, because he's seen and heard things that even I have not seen and heard. That is the reason he protected me, and he made me somewhere the reason I could have kept quiet. Because dude, बोलना नहीं चाहिए, but it's not that I've lost some diamond that I have to cry to the world, oh my God, मेरा तो कितना बड़ा लॉस हो गया, हाय अब मैं क्या करूंगी. Allah has made me better than you, irrespective. And then you not see anything and just see someone and fall for that person, irrespective of any materialistic gain that you're going to get in this world. Or some, कहते हैं ना, eye candy, nothing was there for me, but I was still there. And then I was like, I am glad that this thing didn't happen. I was putting all my good thoughts that I've grown up with into a bad person. और जो जैसा है वो वैसा ही दिखता है और जो जैसा है वो वैसे ही समझता है. Because I was restricted from so many things in my life because the person is like that. That person does that. Then he is with 4 girls. He hits on that 4 girls. That is why he thinks that the girl he is with, वो लड़की भी वैसी है अगर वो 4 लड़कों के बीच में है, क्योंकि आप वैसे हो, आपकी सोच वैसी है, आपकी हरकतें वैसी है. हमारी अपब्रिंगिंग उतनी गंदी नहीं है. और ये सब कुछ मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, इंसान जैसा भी है वो उसके अपब्रिंगिंग से ही आता है. सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपका घर का वो माहौल नहीं हो, वो मुआशरा नहीं हो और आप
अचानक से कुछ एकदम अलग हो गए हो तो। और फिर भैया मैंने तो पूरा पैकेज ही से ही डील किया, एक इंसान से नहीं डील किया, पूरा पैकेज। मतलब वो कहते हैं ना, एक डब्बे में एक आम खराब निकला, मैंने पूरा डब्बा देखा है, सब खराब है। लाइक पीपल आर हॉरिबल यार, दे पुट अप अ फेस। एंड ये जितनी भी जो लड़कियां जिनका मैंने लिया है, आप उनके सिर्फ फोटो के नीचे उनके कैप्शंस देख लो, सब बुक में से चोरी चोरी कर करके लिख लेते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आप लिख रहे हो तो उस पर चलो ना। Do you think a homebreaker like you will end up getting a good husband? Dude, no. You will end up being with a homebreaker again. Somebody is going to take this idiot that who you are going to get married to and stay with him. Get up every day with that person. Wake up next to that person and see, oh my man is cheating on me, because that is what you are going to get. And these guys will also get up and see, oh, my woman was, I know she's having an affair. She's having an extramarital affair with some other. You are going to wake up with this kind of men and women. And I hope that happens, and God will give them that. You don't think that you can break people's heart and do shit with them and expect गुड थिंग्स हैपनिंग। तो ये भैया ये दुनिया का दस्तूर है, और ये ऊपर वाले का भी दस्तूर है। सिर्फ जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा है। व्हाट यू सो शैल यू रीप, ये सब कहावतें ऐसी ही नहीं आई है, ये सब कुछ सोच समझ के ही आई है। एंड आई एम श्योर सही लोगों को और अच्छे लोगों को इंसाफ मिलेगा, दुनिया से भी और ऊपर से भी, और गंदे लोगों को तो लानत बरसे। और ये हमको देखने भी मिले। मैं तो कहती हूँ ऊपर वाले को, प्लीज मुझे उतना लकी करो कि मैं अपनी आंख से देख पाऊँ, और ये मैं देखूंगी, और ये सब देखेंगे। और आप मुझे बताइए, जब आपको ये सारे जो लक्षण थे उनके अंदर, जो आप अभी कह रही हैं, रिलेशनशिप के दौरान अर्ली स्टेज में आपको नहीं पता? नहीं पता चले, बिल्कुल पता नहीं चले। और आपको मैं बोलती हूँ ना, जो लोगों ने मुझे इंस्टा जो डीएम किया, और जो मैंने डीएम डाला भी था ना अपने स्टोरी पे, वो हर एक चीज है जो मैंने कन्फ्रंट कर चुकी हूँ सामने वाले से। तो मुझे पता है कि पीपल आर नॉट ब्लफिंग, हर एक चीज। Like when I was in London, people used to text me, अरे this person is here next to my table, he's drinking. भैया तुम दारू पियो, एसिड पियो, गटर का पानी पियो, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बोलो कि भैया मैं गटर का पानी पीने वाला आदमी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपने रास्ते निकल जाऊँ ना। भैया मेरे को इनफिडिलिटी इशू है, मेरे खानदान में है वो, हम एक के साथ नहीं रहते, हम सबके साथ रहते हैं। भैया तू एक के साथ नहीं 100 के साथ रहे, मैं तो निकल जाऊं। फिर जो लड़की को 100 के साथ रहने वाला पसंद है वो रह ले उसके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चोर हो, तुम बताओ मेरे अंदर चोरी है, मैं तो लोगों की चीजें चुरा लेता हूँ, मैं स्पॉन्सर्ड लाइफ पे जीता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बहुत लड़कियां जो स्पॉन्सर करती है लोगों को जिंदगियां अपने साथ रखने के लिए, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो आगे निकल जाती ना भैया, क्योंकि मेरे पास तो कोई गॉडफादर नहीं है। आई एम द ओनली ब्रेड विनर फॉर माई हाउस। I cannot waste my money on someone so stupid. मेरे घर में हराम का पैसा नहीं आता, मेरे यहाँ पे कोई झाड़ नहीं लगा जो मैं तोड़ की गिफ्ट्स ला रही हूँ, मैं मेहनत से कमाती हूँ वो पैसा। आपने उन पे बहुत खर्च किया? बहुत बहुत ज्यादा। But ठीक है, I think you learn from everything. This was a bad lesson, और मैं सबसे यही कोशिश करूंगी, और मेरा बोलने का भी एक ही मकसद है, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग ये एक्सपीरियंस करें। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ अगर ये हुआ है, जैसे कुछ लड़कियां हैं, बहुत कम, अल्हम्दुलिल्लाह 1% लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, या ये जो कुछ लड़कियां बोले कि अरे अभी हम किसकी बात पे यकीन करें। भैया तुम्हारी बात से मेरे को ये, तुम कौन हो? कभी कभी तो आपको कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे पाती, आप तो इंसान हो सिर्फ, जिसको कुछ नहीं पता, जो सिर्फ इंस्टाग्राम में बैठ के देख रहे हो क्या हुआ। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा बताने का यही चीज है कि भैया आप बचो, इससे बचो, ऐसे लोगों से बचो, और जब सिचुएशन खराब है तो बोलो। और मैंने हमेशा एक ही चीज बोली अपने इंटरव्यू में भी, जब लोगों से भी बात होती है, मैंने कहा भैया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंस्टाग्राम है, लोग मुझे कुछ लोग जान लेते हैं, जो थोड़े बहुत मिलियन फॉलोअर्स है, जिसमें से अल्लाह ही जाने कितने एक्टिव और कितने लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फॉलो करके छोड़ देते। मैंने कहा मुझे सपोर्ट मिला जो मुझे अच्छा लगा, जब लोगों ने मुझे मैसेज किया जिनको मैं नहीं जानती कि भैया आई अंडरस्टैंड दैट यू आर राइट एंड आई कैन सी दैट, बट what about people who don't have followers? What about people who are not on Instagram? What about those girls? This raising of this voice was to create an awareness that it doesn't matter if you're a celebrity, no, it doesn't matter, you don't give a shit, it doesn't matter if you're not on Instagram, talk to people. लोगों के पास एक दो दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं, कभी कभी माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता बिकॉज सोसाइटी है, और वो मैं समझती हूँ, लेकिन भाई किससे तो बात करो, अंदर ही अंदर मत घुटो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद लॉट ऑफ गर्ल्स एंड लॉट ऑफ बॉयज आल्सो। इट इज नॉट अ जेंडर सिचुएशन कि लड़के ऐसे, भैया लड़कियां भी एक से एक तोप देखी है मैंने। अब यहाँ पे जो मेरे स्टोरी में 4-5 लड़कियां, आप उनको देख लो, एक तो भाई बोलती है भाई, आप सोचो उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को क्या गंदगी करी है, और दूसरी लड़कियां ये तो पीछे। मैंने बोला भाई तुम्हारी इंस्टाग्राम की फोटोज ये देख के मालूम पड़ता है तुम्हारी कैसी सोच की लड़कियां है। जो लड़की, एक लड़का जब किसी के बारे में खुला बोल रहा है कि ये इसके साथ है, आप फिर भी उसके साथ लगे पड़ो, तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया। इट्स सो सिंपल नो। और
मैंने बहुत टाइम ये भी बोला है कि देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु विल, जो हमारा मैटर पे बात कर रही है, उसमें से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये हुआ नहीं है तो वो समझ नहीं पाती। मैं सोचती हूँ कि भले मुझे सपोर्ट नहीं करे, बट मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे उनके साथ कभी ये हो भी ना, इस सिचुएशन को समझने के लिए। ऐसी सिचुएशन से अल्लाह तुमको महफूज रखे। उसके अलावा देयर आर सम पीपल हु फील दैट ठीक है यार, रिलेशनशिप पे क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, अभी दूसरे के पास चले जाना। देयर आर सम पीपल हु आर लाइक दैट। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि भाई आज ही छूट गया चलो दूसरा आओ, हमारा क्या है, हम तो दूसरा पटा लेंगे। हम वो पटाव पुटू वाले में से नहीं है भाई, हमको करना ही नहीं है। और देन देयर आर सम पीपल जिनको सच्चा प्यार ही नहीं हुआ है, बट सो इट इज लाइक until and unless it's not my matter, it doesn't matter। वैसे सिचुएशन के भी तो लोग हैं ना, फिर जब आप पे बीतती है फिर आपको लगता है हाँ यार मतलब ये सिचुएशन में ऐसा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टुडे हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट ये एक चीज में आई फील women lack when they talk about women empowerment। It begins with you as a woman। You have to stop doing certain things, stop fighting for wrong things, stop fighting for nudity कि भैया मेरा जिस्म मेरी मर्जी और शॉर्ट्स पहनूंगी मैं, सी थ्रू पहनूंगी, कुछ ये फाइटिंग वाले मुद्दे नहीं है भाई। निप स्लिप आप इसके लिए मोर्चे निकल रहे, बट इनफिडेलिटी इसके लिए कहाँ है? ये सारी वुमेन कहाँ है? हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर आर दे? And after telling also, there were so many people who were still liking, commenting on people's page, and they are actors. And I was like, bhai, you need a standing ovation because you are the women who stand for women empowerment. And when a woman is talking, you're still supporting something wrong. Like hats off. उन्होंने कभी आपसे माफी मांगी? अगर इनके अंदर इतनी अच्छी सी 1% भी गुण होता तो इनकी लाइफ ही कुछ और हो। अभी तो मैंने तो पहले भी बहुत क्लियरली बोला, मैंने जो हुआ है मेरे साथ सिर्फ 50% बताया है। सोचो 50% ही पहाड़ के जितना है। जो बाकी की चीजें मुझे नहीं लगता मैं कभी सामने वो चीजें लाऊंगी, लेकिन वो उससे भी गंदी चीजें है। तो मुझे ऐसा लगता है वो सारी चीजें देखिए भाई, मैं जितना एक अनसेंसर्ड चीजें करके जो मैं बता सकूं मैं बता दूं, क्योंकि बाकी की चीजें शायद बोलना होगा और सामने वाला लिखने वाला लिख भी नहीं पाएगा। तो मैंने कहा ये चीजें मुझे बात करनी ही नहीं है, इस चीज का इंसाफ तो वक्त ही देगा और कर्मा ही बताएगा। मैंने अपने आप को वही सोचा, भैया मैं वो कर्मा हूँ जो तूने हर लड़की के साथ किया, ऊपर वाले ने मुझे तेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। भैया आप बाइसेक्सुअल हो, कौन हो भाई, तू जो है तू रह ना, मेरे को तुम्हारे सेक्सुअलिटी से भी कोई इशू नहीं है, पर आप फिर बताओ लड़की को भैया मैं सब जगह जाता हूँ, इधर उधर राइट लेफ्ट एवरीवेयर, मैं चूज तो कर सकती हूँ ना, उतना तो मेरा हक है कि नहीं सिद्ध कि मेरे को एक स्ट्रेट के साथ रहना है कि बाई के साथ रहना, उतना मेरा हक है कि नहीं? हर किसी का है वो। Like these things were shocking. I was like, what? And it's crazy. Like even like in my, I've said that before that whoever he was dating before, ये भी ठरकी वो भी ठरकी। जब दो ठरक मिलते हैं तो थोड़ा ना कोई किसी के बारे में बाहर बात करता है। आपके यहाँ से लेके वहां तक अगर हर लड़की के साथ रिलेशन है, उनके भी हर लड़की के साथ रिलेशन है, तो उन्होंने तो कभी आपके बारे में बताना मुनासिब ही नहीं समझा। क्यों बताएंगी? क्योंकि आपकी भी तो राज है, उनकी भी तो राज है आपके पास। ऐसे वाले। And then when media writes about it, you come out. People are writing all rubbish. Media is writing all rubbish. How dare do you make two friends, boyfriends and girlfriends? And when you're traveling with that person to Goa, Krabi, Hyderabad, all these places, what about like लोग इतने झूठे हैं, मतलब मैं तो सोचती किस मुंह से अपने आप को देखते भी है भाई, इतने झूठे है तो है, बता दूं ना। And then when I'm in this stupid 1 year contact, I would not even say relationship. Relationship is a very sacred word and it should be used with the right kind of people. But when I was wasting my time of 2019 year, you don't appreciate this guy, the guy doesn't appreciate you. I'm talking about the ex. ये उसको bitch whore पता नहीं क्या क्या कहता था मुझे कि ये ऐसी है, but they're sliding into each other's DM and messaging. Imagine कितने बेगैरत लोग हैं ये लोग. So I was like, dude, you both are trash, you both belong to each other. Like, I'm glad I got to know I am out of it. Because I am not here to fight for my man. Give me my man. मैं अपने लड़की, भैया मेरे को चाहिए ही नहीं, जिसके लिए फाइट करना पड़े उनके साथ क्यों रहना? This person can't even spend 1 rupee. But when he sees me, because I like doing, everybody loves doing. I also do my small bit of helping people and doing this, that. So you act in front of me that you are also from the same category. You don't have to do that. If you don't give, people don't give. You are a cheater and you'll always be one. Like imagine if you're cheating money from your sacred things, chit fund and all. But tell me, आपने 14 फिल्में किए 5 लैंग्वेजेस में, ठीक है? आपने टीवी में नाम कमाया, आपने रियलिटी शो किया, पर कहीं आपको लगा कि शायद एक चस्का था कि यार मैं बड़े पर्दे पे और अपना नाम कमा सकूं, और वो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि आपको ठोकरें खानी पड़ी
और क्योंकि आपके पास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इनर सर्कल का सपोर्ट नहीं था, ऐसे कभी फीलिंग हुआ आपको? ऑफ कोर्स ये है, क्योंकि हम देखते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आई हैव गॉन समवेयर वेयर पीपल हैव सेड अरे इसको नहीं, इसको ले लो. देयर आर टाइम्स वेयर कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव सेड कि आप अपने पिछले मूवी के कास्ट वाले जो है ना उनको रिपीट मत करना, और अरे ये वो आपको बताते हैं कि आपका कैटेगरी क्या है. भैया जो भी आया है आज इंडस्ट्री में सभी नए हैं ना, जो शुरुआत की है, पहले से आते बराबर तो सुपरस्टार नहीं थे, फिर वो बने. लेकिन यू कैटेगराइज पीपल, यू फील दीज आर स्मॉल, दीज आर बिग, ये ए लिस्ट है, ये बी लिस्ट है, ये सी लिस्ट है. आप कौन होते हो? ये कास्टिंग डायरेक्टर्स भी करते हैं. और आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स के हाथ में इतना पावर है कि डायरेक्टर्स भी उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी सुनते हैं. बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टर्स अपना कॉल लेते हैं. अदरवाइज यहाँ पे लोग कास्टिंग में अटक जाते हैं. कास्टिंग में भी जो गेम होता है, बाप रे, वो गेम ही कुछ और है. यहाँ तो लगता है भैया चाय से ज्यादा तो प्याला गर्म है. ये यहाँ का सिचुएशन है. और प्याले तो इतने गर्म है कि आप पूछो मत, अंदर चाय हो कि ना हो. तो ये सिचुएशन है और हमें पता है, मुझे ये दिखता है, मैंने देखा है, मैंने तो कॉल करना ही लोगों को, मेरे को काम ही नहीं चाहिए. It's been 2 years, more than 2 years. I've not called anyone for work, not even one person. I'm like, dude, I don't want to do this. I opened my clinic face bar. I am doing my work. I want to be at peace. I cannot be struggling and wasting my life and my prime time of my life struggling and falling into shit and falling into false talking. There are people, there are a lot of shit. Except nepotism भी बहुत सारी चीजें भाई इधर, मतलब वो एक चीज पे रुकती नहीं है. तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, चीजें सीख जानी है. आपको अगर लगता है आप इसके लिए नहीं बने और आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, भैया आप पीछे हट जाओ. ये आपकी एक समझदारी है आपकी. लेकिन अगर आप उसके बाद ही उसके अंदर ही बस मुझे करना है करना है करना है करना है करना है करते. अभी जैसे एग्जाम्पल, बहुत लोग एग्जाम्पल फॉलो करते हैं. शाहरुख खान ने आए, यहाँ पे कुछ नहीं था, वो ट्रेन की इधर स्टेशन पे सोए, मरीन लाइन पे सोए, उन्होंने बोला आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड, उन्होंने कर लिया. भाई सब लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता है. वरना शाहरुख खान नहीं होता ना. उसकी एक्सक्लूसिविटी क्या है? आप हर टाइम शाहरुख खान आए, स्टेशन पे रहे, मरीन ड्राइव पे, अब मैं भी स्टेशन पे ही रहूंगा, मरीन ड्राइव पे सोऊंगा, मैं भी शाहरुख खान. ऐसे नहीं होता है. पीपल टेल देयर एक्सपीरियंसेस. अभी न्यूटन ने भी, जाओ न्यूटन बनो भाई, क्यों नहीं बन रहे हो? और भी तो कितने लोग हैं, हर कोई नहीं बन सकता ना. इतिहास रच गया है. You will do good. You will also create a history. Everybody will create a history in their own way. But you can't adapt कि भैया यही करना है. Sometimes some people are not destined. I'm not destined to be a Madhuri Dixit. I will not. मैं कितना भी घस लूं अपने आप को, मैं सर्जरी करा के भी आ जाऊं, तो भी लोग नहीं देना है काम. People will come and literally tell you that you look so good. You look better than this actress. I swear, people say that. You are better than this. काम 0/0. काम नहीं देना. आप बहुत टैलेंट, ये मैंने एक डायरेक्टर से सुना है. एक जनरल बात हो रही थी, मैं तो अभी खुल के ही कह रही थी, क्योंकि मुझे काम ही नहीं चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे करना ही नहीं है काम. मुझे एक जगह पे किसी ने बोला, पता है काम ना इंडस्ट्री में आता है भी. जैसे देखो कादर खान साहब का एग्जाम्पल, या अमरीश पुरी जी का एग्जाम्पल, या अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल, कि जब ये आए थे कि इन्होंने इनको नहीं दिया, ये वो, ये लुक्स निकाला, वो देखो. लेकिन ये साल ना उनको जिसने ढूंढा ना, वो ढूंढा, और देखो फिर वो क्या हुए. बस वो एक इंसान को ना आपका टैलेंट देखना जरूरी है. मैं बोली तो फिर तो हो गया. लड़कियों का वैसे ही कितना भी टैलेंट हो, इतना शॉर्ट स्पैन है. एवरी मैच्योर्ड टू मैच्योर्ड एक्टर वांट्स टू रोमांस द यंगेस्ट फीमेल को स्टार. तो लड़की को तो कुछ टाइम बाद माई बना देते हो किसी ना किसी की. You understand? There is no same age group love happening. Then they'll go and find a concept where they show that a matured man is in love with a younger girl. The concept of the movie changes, but not the reality. That boss काम नहीं, हमको तो ये चीज ऐसे ही चलते रहनी है. तो ये सारे जो कहावतें सुनते हैं, और मैंने अपने आप को ये सोचा था कि मुझे इन लोगों के बातों में नहीं आना है कि मुझे कभी काम मिलेगा तो मैं बस अभी 40-50 साल तक का स्ट्रगल ही करते रहूं. भाई नहीं करना है मेरे को अपना कुछ दूसरी चीजें ढूंढनी है, मुझे वो करना है. एंड मोर देन दैट मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपके दिमाग शांत नहीं है, आपका दिमाग में, क्योंकि जब इंसान सिर्फ स्ट्रगल ही करता रहेगा तो वो सोचेगा ना भाई मेरी लाइफ का क्या हो रहा है, मेरे को पार्टनर कौन मिलेगा. लड़का लड़की दोनों सोचते हैं ना कि मैं शादी किसी करूंगा, शादी का खर्चा कौन उठाएगा. अच्छा अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी मैं शादी कर भी लूँ, किसी को पता ना चले. जो स्ट्रगलिंग बॉयज की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा है. मुझे शादी बताना नहीं है किसी को, भले उनको कोई जानता नहीं है उनके बिल्डिंग के अलावा, लेकिन उनको उनकी शादी हो गई बताना नहीं है किसी को, पता नहीं क्या बॉम्ब फूट जाएगा. उसके बाद अभी यार मेरा अभी तक मैं स्ट्रगल सेटल नहीं हुआ. 40 साल की लड़की, मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ. मेरे को पहले, अब मैं बच्चा कैसे करूँ. इसमें तुम्हारी जिंदगी बेड़ा गर्क हो चुका है. तुम 40 साल के हो गए, तुम्हारा बच्चा कब होगा, तुम दादा बन जाओगे, क्या चल क्या रहा है.
Girls are not getting married, they're going and removing their eggs and storing it and IV babies कर रहे हैं. What has happened to the, you see it, when you see it, it's so crazy. And then you go under depression, if not today, later. People might not know about it. You're married but you're depressed because you can't be a mother, because you're continuously getting your IVs but you're not able to hold a baby because you've left your prime age of becoming a mother. People are 40, 45, they're not married, not having babies. आज के लोगों क्या घर पे बैठ के शादी करना, बच्चे करना, आज का जमाना ये नहीं है. आज की लड़कियां ये नहीं है. ये लिबरल थॉट ने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी है, एंड इट्स अ फैक्ट. अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने बिग बॉस किया, जहां पे आपकी मुलाकात सलमान खान के साथ हुई, आपने जय हो में भी काम किया। आपका बॉन्ड, आपका रिश्ता सलमान खान के साथ कैसा है? मेरा रिश्ता सलमान खान के साथ वैसे ही है जैसे एक एक्टर का अपने को एक्टर के साथ होता है, बिल्कुल वैसा है. उस टाइम पे ऑफ कोर्स बिग बॉस में इतनी मस्ती हुई सभी, वो टाइम पे एक ज्यादा ही कुछ क्लोज रिलेशनशिप था. बट देन वी आर कॉर्डियल टुडे. इफ वी मीट, there's hi, hello, and that's it. There's nothing more to it. Like I said, that my relationship with him is very, very pure. Like PURE in capital. अच्छा, मुझे बताओ क्या, अच्छा सुनो ना, आपने कभी कास्टिंग काउच फेस किया? किसी ने आपको हिंट विंट देने की कोशिश की? ऑफ कोर्स, जो भी कहता नहीं फेस किया एक नंबर का झूठा है. ऑफ कोर्स, कास्टिंग काउच कास्टिंग डायरेक्टर के भी साथ होना चाहिए. अभी तो ये है. तो ये तो रहता ही है. बड़े बड़े नाम है इसके अंदर, नाम लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि होना कुछ नहीं है किसी का. अपने आप को उस चीज में, गटर में डालने से अच्छा आप उस गटर से दूर हो जाओ. वो चीज वैसी है, वो एग्जिस्ट करती है और वो एग्जिस्ट करती रहेगी, क्योंकि उस रिक्वायरमेंट को और उस सीट को पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स है उधर. अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा. तो कैंडिडेट है उधर अपने पास. ऐसा नहीं कि ये सीट पे आप कास्टिंग काउच के बाद ही आपको ये सीट मिलेगी, तो अगर हमने वो सीट छोड़ दिया तो सीट खाली रह जाएगी. नहीं भैया, वहां पे तो भी भीड़ लगी है तत्काल में रहने के बाद भी. जैसी राशन में लगती है ना लाइन, उतनी लंबी लाइन है आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. सो जो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है भाई, वो काम करेगा. जो नहीं कर सकता, स्ट्रगल करते रहे, अपने आप को थोड़ा बहुत यहाँ वहां करके कर ले.